how to do paper presentation and answer writing in Hindi ICSE class 10. I scored a 97 on 100 in Hindi and you can too score 100. It is going to be on a real answer sheet जो कि मैंने खुद ने अपने हाथों से लिखी हुई है. And don't mind मेरी शक्ल because मेरे को last 2 days थोड़ा fever आ रहा है and that's why I can't make video for you guys. But still I am doing this. So hit like to this video, subscribe to the channel and let us move to. So this is how your answer sheet looks like. This is first page, that is OMR sheet. This is second page. Okay, now let us move towards the very first thing, that is going to be your answer writing. Always I started from Sahitya Sagar Sankshipt Kahaniyan, that is our stories. Okay, पद्य पाठ उसको मैंने हमेशा सबसे स्टार्टिंग में करा था, that is section B. I just write the section number, then after write the prose and जो भी उसकी नेम वगैरह रहता है, ठीक है, संक्षिप्त कहानियाँ. After that I write the question number, then after I start writing the answer. And this is how my answer looks like. This is 2 mark answer, okay, and this is also 2 mark answer. Then we will have 3 mark answers over there. Last 2 questions are of 3 marks and starting 2 questions are of 2 marks. Okay, now talking about how to write the answer. If one question consists 2 sub questions, so you have to write the answers in this kind of things, one in one line, like one in one paragraph, and the second sub question in the second paragraph. Okay, आफ्टर लीविंग वन लाइन बिटवीन देम. क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसा करा सो इट वुड लुक वेरी नाइस एंड योर एग्जामिनर विल बी लाइक कि हाँ इस बच्चे ने अलग क्वेश्चन का अलग आंसर दे रखा है, सो दैट वो प्रॉपरली आपकी मार्किंग कर सके. ओके, आफ्टर दैट इफ़ यू हैव टू मार्क द कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स मार्क करने के लिए आप लोगों को जो एक्स्ट्रा बताना है उनको मार्क नहीं करना है. जो मेन क्वेश्चन में पूछा गया है, यू हैव टू मार्क दैट आंसर. ओके, नथिंग एल्स. जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है उसको मैंने मार्क नहीं करा. मार्क ओनली द थिंग्स विच आर asked in the question. Okay, after completing one question you have to draw one line between both the answers. Okay, after that start with the second point. Now here also I have completed that in 2 paragraphs, that is 2 marker question. After 3 marker question में भी मैंने इतना ही लिखा है and 1 more paragraph is here. Okay, after that the 4th question is over here. Okay, and after completing the whole question draw 2 lines so that examiner को पता चले कि हाँ इस बच्चे ने पूरा का पूरा complete कर लिया and it is done. Okay, well, you have taken only stories for completing 2 questions, so do that in continuation. No need कि आप पहले section A में मतलब section B अगर आप लोगों ने start करा तो section B में पहले प्रश्न 5 लिख दो, ठीक है, और उसके बाद में प्रश्न 6 मत लिखो, उसके बाद में पहले एकांकी कर लो, फिर उसके बाद में प्रश्न 6 लिखो. अगर आपने एक कोई सा प्रोज उठाया या एक एकांकी उठाई तो उन्हीं के 2 क्वेश्चन कंप्लीट करो, देन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, एकांकी I have chosen only stories and एकांकी for my answer writing part. मैंने इसके अलावा कोई से भी नहीं करे थे. I have did only 2 questions from stories and 2 questions from the एकांकी, nothing else. Okay, in A section A का starting में I always choose to do only 4th question which is MCQs पार्ट जो 8 मार्क्स का आता है हमारा. ओके, फॉर दैट यू हैव टू थिंक प्रॉपरली अबाउट ऑप्शंस, क्योंकि अगर ऑप्शंस को आप लोगों ने प्रॉपरली नहीं करा तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. 8 मार्क्स आपके यूं ही चले जाएंगे अगर आप लोगों ने अच्छे से इनको नहीं पढ़ा और अच्छे से अपने लोगों को नहीं लिखा तो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दी रोमन न्यूमरल्स. जितने 8 मार्क का होता है 8 न्यूमरल्स होते हैं हमारे पास, 8 न्यूमरल्स लिख दो. आफ्टर दैट 2 से 3 बार पहले एमसीक्यूज को पढ़ो, एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, आफ्टर राइट दी आंसर. ओके, मैंने हमेशा से मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा था वो था आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, मैंने हमेशा हिंदी के पेपर में क्वेश्चन एंड आंसर से ही स्टार्ट करा है बिकॉज उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है. उसमें हमको ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, जो क्वेश्चन रहता है हम लोग डायरेक्टली उसको लिखते हैं. ठीक है, अब अगर हम लोग को जैसे मान लो हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़ी हुई है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट ग्रामर पार्ट वी नेवर नो कौन सी चीज़ कब आ जाए. ठीक है, सो दैट्स वाई आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर्स. फ्रॉम क्वेश्चन आंसर्स आई मूव टू दी अनसीन पैसेज एंड एमसीक्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आप अनसीन पैसेज कर लो या फिर एमसीक्यूज कर लो. आई ऑलवेज चूज एमसीक्यूज. ओके, आफ्टर एमसीक्यूज आई मूव टूवर्ड्स दी
अनसीन पैसेज, एंड अनसीन पैसेज के मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखे बिकॉज दैट वी नेवर नो कौन सा आए कौन सा नहीं आए. दैट्स वाई आई जस्ट ड्रॉ सम फ्यू लाइन्स सो दैट आपको पता चले कि फर्स्ट क्वेश्चन में कितने मार्क, मतलब कितनी लाइन्स का यू कैन राइट, और थर्ड में कितना, फोर्थ में कितना. ठीक है, सो यू कैन वॉच एंड गो थ्रू इट. ओके, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ICSE क्लास 10th checklist of Hindi. Okay, you can go and join my channel to watch that, and it is really very helpful. I have already uploaded a lot more subjects as well, so you can go and watch that out. Now talking about प्रश्न 2, जो कि हमारा लेटर होता है यूजुअली, राइट प्रश्न 2 और उसका जो भी फर्स्ट कर रहे हो इनफॉर्मल या फॉर्मल वो वाला नंबर डाल दो, एंड आफ्टर एक ही पेज में आप लोगों को पूरा का पूरा लेटर करना है. जो भी अपना पत्र होता है उसको आपको एक ही पेज में करना है. ठीक है, लाइक दिस. आफ्टर दैट एट द एंड, सबसे लास्ट में, कंप्लीटिंग द होल पेपर, कम टूवर्ड्स योर ऐसे पार्ट, क्योंकि ऐसे कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि आप लोगों को एंड में अगर दिमाग शांत रह के करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स दे देगा ये. ठीक है. ओके, सो इन ऐसे व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ समथिंग जो कि एकदम से, जैसे इंट्रो पढ़े एग्जामिनर, उसको बिल्कुल एकदम से बहुत एक्साइटमेंट हो कि आपका पूरा का पूरा ऐसे पढ़ना चाहे. वो एग्जामिनर आपको स्टार्टिंग में ही देख लेगा कि नहीं यार इसने इंट्रो ही इतना अच्छा लिखा तो आगे क्या चीज़ लिखी होगी, बहुत क्यूरियोसिटी होगी. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग स्टार्टिंग का इंट्रो और लास्ट का कंक्लूजन इतना बेस्ट होना चाहिए आपका कि एग्जामिनर सिर्फ स्टार्टिंग और लास्ट का देखे और बीच का कुछ भी नहीं देखे और फिर भी आपको फुल मार्क्स देते हैं. ठीक है, बीच का ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं वो, बट स्टिल आप लोगों को उसमें भी रिलेटेबल लिखना है. ऐसा नहीं कुछ भी एक्स्ट्रा लिख दो या फिर जो ऊपर लिखा हो उसी को रिपीट कर दो, बार बार रिपीट कर दो. नो, आई हैव अपलोडेड एवरीथिंग इन द चेकलिस्ट. उसमें एक एक चीज़ मैंने बताई हुई है दैट आप लोग को कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए. इफ यू हैवंट वॉच दैट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माई चैनल, यू कैन जॉइन दैट. अलॉन्ग विद दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड how to complete your whole syllabus of Hindi in just one day. Along with that, I have uploaded how I scored 97 on 100 in Hindi, and after that I have uploaded how to study Hindi. Like a lot of videos I have uploaded related to Hindi. You can go and watch it out. And by the way, this full answer sheet is from Educart. If you are feeling that nahi meko thoda sa practice वगैरह करना चाहिए, so you can buy this. Link is also there in the description box. Okay, so yes, this was all about today's video. I hope you liked it, and if it helped you, so like this video, subscribe to the channel, and don't forget to share with your friends क्योंकि उन लोगों को बहुत हेल्पफुल मिलेगा ये. आफ्टर दैट कमेंट डाउन बिलो दैट व्हाट यू वांट नेक्स्ट, एंड किस चीज़ में आपको लाइक ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है. सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.